हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Climate. Climate is the most important, and here first point arrive here factors affecting the climate of India. There is a most important factors affecting the climate of India. You know that there are conservation of here Mona and Raju. Mona and Raju, they are most important creature on this chapter. Where is the train? Along with the parents, they ask the question to their parents about the difference between weather and climate. But one of the fellows the passengers was a teacher, Mistress Rupas, and he explained their climate is away for a large area like a country or a big regions and generally it does not be change. Like India has a monsoon climate whereas weather is the way for a smaller area like that your cities or village where it may be frequently change like a it's rain in the morning and sunny in the afternoon. Mrs. Rupa is asking them to be absorb the changes in the weather condition about the way to be similar. They realized that a change it was hot and humid weather in the southern regions and slowly it's become hot and dry in the northern plain and they felt cool on their way. Then they were is close to be similar, and they asked the teachers the reason for it, and she explained there that there are many factors which affect the climate or weather. That is important. The next topic is important here, factor affecting the climate of India. There is a most important point here. The first of all here, location. Location is very important here. The place which are the close to equator have a high temperature. As one moves toward the pole, temperature has decreased. As our country, India is located in the northern hemisphere, closer to equator at 8 degrees and 4 Celsius there, and the 23 1 upon 2 degrees. And tropical cancer are passed through the center part of India. So, in the south of these latitudes, we find tropical climate, and toward the north, we find subtropical climate. For the example, Andhra Pradesh would be hotter than Haryana, and broadly speaking, part lying south to the tropics of Cancer receive more solar heat than close lying northern of it. And the next here, distance from the sea. The distance from the sea, there is a very about here. The southern half of the Indian surrounding by the sea form three sides. The Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Due to moderating influence by the sea, this region is neither hot in a summer nor very cold in winter. For example, the area of northern India, which are far away from the sea, has extreme types of climate, and the area of southern India, which are nearer for the sea, has a enable types of climate. We can see the variation in temperature and rainfall at different stations in the given table. The next here, altitude. Altitude is important. It means the height above the average sea level. Mean their height above the average sea level. The atmosphere become a less dense and we feel a breathlessness and we go higher from their earth surface and thus the temperature also decrease with the height. For example, the cities are located on the hill are cooler like a Simla. Whereas the cities lies in their plain with the have a hot climate like a Ludhiana. The next here, mountain range. The mountain range is varied about here. The mountain range also affect the climate of any region to be great extent. The Himalaya mountain is located in the northern part of our country with an average height of 6,000 meter. It's a protect our country from cold winds of Central Asia. On the other hand, there is a check the rain bearings of southwest monsoon and winds and the capital them to be studied
there is a moisture in India. Similarly, Western Ghat, a forced rain-bearing wind to be causes heavier rainfall on the western slope of the Western Ghat. The next here, direction of surface wind. There are direction of here surface winds. The wind system also affect the Indian climate. This system consists of the monsoon wind, land and sea breezes, and the local winds also. In the winter, the winds blow from to the land to the sea, so they are cold and dry. On the other hand, in the summer, winds blow from a sea to land and bearing the moisture along with them from the sea, and they causes widespread rain on most part of the country. The next here, upper air currents. There is an important upper air currents here. Beside a surface wind, there are a strong air currents called jet stream. You know that? What is a jet stream here? The beside surface wind, there is a strong air current. The strong air currents called jet streams, which also influence the climate of India. And these jet streams are a narrow belt of the fast blowing winds and localized generally at a 12,000 meters height above the sea level. And their varying of western cyclonics is a disturbance along with them. And these cyclonics winds originate near the Mediterranean Sea and move the eastward. One, there is a way there is a collected moisture from the Persian Gulf and studied in the northern western part of India during to the winter season. And this jet stream is shift is northward during to the summer season and the below in the Central Asia. And thus there is a onset of monsoon. This is important. Let's come to the map and see there is a factor of here. On the screen here, there is the most important here. There is a map for the next question is important. There is a by the Bengal winter monsoon and even here. अब जो हम करेंगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जलवायु। जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हर एक क्लास के बच्चों के लिए, हर एक जगह पे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अगर हम पहली पॉइंट की बात करें यहाँ पर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए भारतीय जलवायु को कौन से कारक हैं जो इसको काफ़ी प्रभावित करता है और इसकी दिशा को बदल देता है। कहते हैं दिशा को बदलना हवाओं का काम होता है और बड़े बड़े चट्टानों का काम होता है। तो वो सारे फैक्टर पे हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और हर जो अछूता पॉइंट रहेगा उस पर हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर हमारा यहाँ पहला प्रश्न आता है भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने प्रश्न किया, दो बच्चे हैं मोना और राजू ने अपने माता पिता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में पूछा माता पिता से कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर ही एक शिक्षिका थी श्रीमती रूपा, उन्होंने सामान्य तौर पर यह बताया कि जलवायु हमेशा बड़े क्षेत्र के लिए होता है। यानी श्रीमती रूपा ने सामान्यतः बच्चों को ये बात बताया और समझाने की कोशिश किया कि जलवायु हमेशा बड़े क्षेत्र के लिए होता है और मौसम छोटे क्षेत्र के लिए होता है। यानी मान लीजिए कोई राज्य में आप रह रहे हैं तो छोटा क्षेत्र है और वहाँ के जलवायु जो है, ठीक है, जलवायु वही जलवायु होगा जो पूरे देश में चल रही है। तो सर्दी है तो सर्दी देखिए सभी देशों में चलता है, ये जलवायु हुई। और मौसम, मान लीजिए सर्दी का मौसम है, कहीं भी जो है पानी भी हो रही है, कहीं बर्फ़ भी गिर रही है, तो ये मौसम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ भली बातें समझ गए होंगे। और मिस रूपा ने भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई कि इसमें परिवर्तन होता है, यानी जलवायु जो होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कहते हैं मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है और छोटा इकाई होता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में मानसून जलवायु है, मानसून जो है एक तरह का देखा जाए तो जलवायु है। लेकिन वही हम अगर बात करें मौसम की, तो मौसम के रिगार्डिंग छोटे छोटे जगहों पर ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि आपके शहर या गांव में जहां प्रायः सुबह में बारिश और दोपहर में धूप होती है। श्रीमती रूपा ने उसने ये भी
कहा कि शिमला के रास्ते में मौसम की स्थिति में परिवर्तन का अवलोकन आप कर सकते हैं। उन्होंने कुछ परिवर्तन अनुभव किए। मौसम दक्षिण क्षेत्र में गर्म और आर्द्र था और धीरे धीरे जो है उत्तरी मैदान में गर्म और शुष्क हो गया, और धीरे धीरे जब वो शिमला के करीब थे तो उन्हें ठंड महसूस होने लगा। उन्हें शिक्षकों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मौसम जलवायु या मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक है। जनरल सी बात है, ये सारे कारक हैं, तो इसी पे हम आगे विचार करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो हमारा अगला पॉइंट जो आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला तो यही आता है कारक के रूप में स्थान। कहते हैं स्थान किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो स्थान भूमध्य रेखा के करीब है वहाँ तापमान अधिक रहता है, यानी जो भूमध्य रेखा के करीब होगा वहाँ पर तापमान सबसे अधिक होगा, और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आते हैं तापमान घटता जाता है, यानी हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो तापमान घटने लग जाती है। हमारा देश भारत की स्थिति उत्तरी गोलोद में वृत्त में जो है 8 डिग्री 4 उत्तर में स्थित है तथा कर्क वृत्त से जो है 23.1/2 उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है। इस प्रकार से कर्क वृत्त के दक्षिण की जलवायु उष्णकटिबंधीय और इसके जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यानी देखा जाए तो भारत के जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है और उत्तर में भी जो है उष्णकटिबंधीय है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की जलवायु हरियाणा से अधिक गर्म है और आमतौर पर कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित भूभाग इसके उत्तर में स्थित भूभागों से अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तो आप समझ सकते हो कि जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित जो है स्थान करता है। आप किस क्षेत्र में हो, कैसे जगहों पे हो, वहाँ पर क्या कंडीशन होता है, तो वो जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। उसके पश्चात आता है समुद्र से दूरी। देखिए समुद्र से जो क्षेत्र दूर में रहेगा वहाँ के जलवायु में भी आपको बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। भारत का दक्षिणी आधा भाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र के अनुकूलन प्रभाव के कारण यह क्षेत्र न तो गर्मियों में ज़्यादा गर्म है और न ही समुद्र में बहुत ही ठंड होती है, यानी ये सामान्य कंडीशन की होती है। क्योंकि कहते हैं जितने नदियों के पास रहोगे वहाँ के मौसम में बहुत ही अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर भारत का क्षेत्र जहाँ समुद्र से बहुत दूर है, यानी उत्तर भारत जो है समुद्र से देख सकते हो काफ़ी दूर है, कि जलवायु का विषम है, जबकि दक्षिणी भारत जो समुद्र के निकट है कि जलवायु देखिए सम है। ठीक है, विषम का मतलब होता है कि बहुत गर्म होगा, सम का मतलब बहुत ही ठंड रहता है। हम दी गई तालिकाओं को भी इसके अवलोकन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें बदलाव हो सकता है। उसके पश्चात है समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे जो है वो क्षेत्र है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि औसतन समुद्री जो है तल से ऊंचा है। जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल कम घनी होती चली जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप भली भांति जानते हो कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ोगे वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए पर्वत आरोही जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन साथ में लेके जाते हैं। कहते हैं जितना ऊंचाई पे आप जाओगे ऑटोमेटिक जो है आपके नाक से ब्लड आने लग जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि औसत समुद्र के तल से ऊंचाई कितनी होती है, ये बात काफ़ी मायने रखता है। यानी जब हम पृथ्वी की सबसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय कम घनत्व होता चला जाता है और हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, और इस प्रकार तापमान भी ऊंचाई के साथ घट जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे तापमान भी वहाँ पर कम हो जाता है और आपको ठंड लगेगी। अगर आपने कभी कहीं पहाड़ी क्षेत्र में गए होगे तो आप भली बात इस बात को समझ सकते हो कि जो नीचे का तापमान होगा और ऊपर के तापमान में बहुत अंतर आपको नज़र आएगा। उदाहरण के लिए पहाड़ी पर स्थित शहर ठंडे होते हैं जैसे शिमला, जबकि एक ही अक्षांश पर मैदानों में स्थित शहर लुधियाना की जलवायु गर्म होती है। यानी आप लुधियाना और शिमला की बात कर लीजिए, कहते हैं ये क्षेत्र काफ़ी नज़दीक है लेकिन फिर भी शिमला जो है ऊंचे क्षेत्र में बसा हुआ है इसलिए वहाँ पर ठंड है, जबकि लुधियाना में जलवायु जो है काफ़ी गर्म है। तो ये समुद्र तल की ऊंचाई भी यहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात है पर्वत श्रेणियाँ। देखिए पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्वत श्रृंखलाएँ भी काफ़ी हद तक किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी पर्वत श्रृंखला भी काफ़ी हद तक किसी भी क्षेत्र की जलवायु काफ़ी प्रभावित करती है और भारत के लिए पर्वत होना
कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तरी भाग में 600 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई के साथ स्थित है। यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखें हम तो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और यह हमारे देश के मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचाता है। यानी मध्य एशिया से जो ठंड हवा आती है हिमालय के कारण जो है हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, यानी इंडिया में इसकी प्रवेश नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह वर्षा करने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को भी रोककर भारत में जो वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। अब देखिए पर्वत श्रेणियाँ कितनी महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट प्रबल वर्षा करने वाले जो है पवनों को पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है धरातलीय पवनों की दिशा। धरातलीय पवनों की दिशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है अपना स्थान। कहते हैं पवन प्रणाली भी भारतीय जलवायु काफ़ी प्रभावित करती है। यानी धरातलीय पवनें भी काफ़ी प्रभावित करती है और मानसूनी पवनें धरातलीय और समुद्री पवनों और स्थानीय पवनें इसमें सम्मिलित होती है। सदियों में भूमि से सम्मिलित और जाने वाले जो है पवन ठंडी और शुष्क होती है और दूसरी ओर गर्मियों में पवनें जो है समुद्र धरातल की ओर चलती है। यह अपने साथ समुद्र से नमी लेकर आती है और देश के अधिकतर भागों में व्यापक वर्षा भी करती है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने साथ समुद्र से नमी लेकर आती है और देश के अधिकतर भागों में व्यापक वर्षा भी करने के लिए बाध्य करती है। यानी धरातलीय पवनों का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। पवनों के कारण ही वर्षा जो है इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में बदल के जाता है, क्योंकि पवन जो है बादलों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती रहती है। तो ये कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकता है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष उत्तरी वायुधाराएँ। ये अंतिम पॉइंट फैक्टर है, उत्तरी वायुधाराएँ। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। धरातलीय पवनों के जो है अतिरिक्त शक्तिशाली वायुधाराएँ हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहती हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में देखा जाए धरातलीय पवनों के अतिरिक्त शक्तिशाली वायुधाराओं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। शक्तिशाली वायुधाराओं को हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। और ये भी भारत की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करती है। यानी ये जो है भारत की जलवायु काफ़ी प्रभावित करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये जेट स्ट्रीम समुद्र तल के लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक संक्रिय पेटी में तेजी चलने वाले पवनें होती है। यानी ये 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। वह अपने साथ पश्चिमी विक्षोभों के साथ लाती है और ये चक्रवाती विषम भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होकर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये रास्ते में फारस की खाड़ी से नमी को ग्रहण करके सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के पश्चिमी भागों में वर्षा करती है और ये जेट वायुधाराएँ गर्मियों में उत्तर की ओर खिसक जाती है और मध्य एशिया में बहने लगती है और इस तरह ये मानसून को भारत में आने में काफ़ी मदद करती है। यानी ऊपरी वायु जलधाराएँ जो होती है भारत में वर्षा लाने के लिए उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार जो है मानचित्र जो दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पर पवनों की दिशा और बरसातों की जो है पैटर्न को दर्शाया गया है। आप शीतकालीन मानसून में आप देख सकते हो कि इस प्रकार जो है ये किस तरह जो है अपनी तरफ से मुड़ जाती है और भारत के दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है। जैसे कि आपका देख भी रहे होंगे कि महाराष्ट्र के साइड मुड़ गई है, यानी उत्तर प्रदेश के बिहार के साइड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये दूसरे साइड जो है अपना रुख बदल लेती है। तो ये मैप भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है समझने के लिए किस प्रकार जो है ये अपना कार्य करती है। और कई बार तो है इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है मैप को भी अच्छे से ध्यान रखना है और मैप को भी समझना है, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, mechanism of monsoon. Mechanism of monsoon. The word monsoon is derived from the Arabic word is a monsoons, which is mean to the season. There is the monsoon is derived from Arabic words is a monsoons, which mean to the season. Monsoon refer to the seasonal is reversal and the wind direction during a year. During the summer, the interior part of the northern Indian plain is covering Rajasthan, Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh are intensely hot. The daily maximum temperature in some of this part is as high as 45 Celsius to 47 Celsius. Given below to indicate their climatic diversity in India,
and try to understand there's varying temperature that a different station in India have. That is important. The mechanism of monsoon here. The next year of temperature in Celsius and therefore in centimeter of some important station in India. There is an important here. You know that there is a stations and temperature here. There is a most important LH. There is temperature is here different time period different here. Jan, Feb, March, and there's December also. And Shillong has the temperatures and rainfall given on table, and daily is temperature and rainfall here. And Jaisalmer, there's most in Jaisalmer is the temperature here and the rainfall. They're important, but Shillong is a maximum rainfall is noted here. A July, there is a July and June. There is June is a maximum here. Is a 476 rainfall, but temperature here a maximum 21 Celsius only. But other side there is important. The other side is daily. There is a March is very hottest day is here 34 and June is 35. There is a most important temperature table here and rainfall also. The average maximum temperature is above 33 Celsius in the month of May to Delhi. There is a May at a Delhi and the Jodhpur such as a high temperature heat up to the air of that region. Hot air arises is a low pressure area is a create under it, and this low pressure is also known as the monsoon tuft. It lies between the Jaisalmer in the west and Balamsore in the Odisha in the east. That is important. The average maximum temperature is about 33 Celsius in the month of May in Delhi. Delhi is also is a 35 Celsius and the Unicris and Jodhpur also. On your map, there is a temperature of May season, May time. There is the most important here. There a temperature is a varied above is a low pressure tuff there side, and there a maximum in temperature is here a May side. There are 46 Celsius, 45 Celsius, and 42 Celsius. There is a very high temperature on noted this in point here. On the other hand, the temperature of India is ocean is relatively is low as a water need to the more time to get heated as a compare to be land. So a relatively high pressure region is created over to the sea. And see there a map 10.2 gives a below of try to understand there is a given phenomenon. And there are difference of temperature and extent pressure over to north center India as a plain and Indian oceans. Due to this difference, air from to high pressure region of the sea and start to the moving toward the low pressure region of northern India. Thus, by there mid-June to a general movement of air is from the equatorial region of India and oceans to the Indian is a subcontinent, and the direction of these winds in a general is from a southwest to northeast. And this direction is extremely is the opposite to be that of the trade. Being northeast to southwest, a prevalence during to winter India. This complete reversal of a wind direction from the northeast to be southwest and vice versa is known as a monsoon. That is important. An important here map on your screen. There is a advancing southwest monsoon and temperature of June. There is an important here. Here advancing the southwest monsoon and temperature of June. You know that the June's here condition is very hot, and on your screen there is the most important show here the 42 Celsius temperature on June. There is a Maharashtra side, and also 46 here Madhya Pradesh, and June here Uttar Pradesh. There is the most important show on your screen. This wind is originate over to the warm seas and therefore they contain a lot of moisture. When this moisture is laden, winds as a move over to the India subcontinent and they causing a bare, wild and separate rain throughout their India, and from June to September, 80% to 90% of the total rainfall in the India is confined to be this 4 month only. That is important. And next year,
Characteristics of the monsoon. There is important characteristics of monsoon. Monsoon are not steady winds. They are irregular in the nature affected by the different atmospheric condition. Due to regional climatic condition, sometime monsoon earlier or sometime late. That is important. There is a monsoon are not a steady winds and they are irregulars in the nature and factor the different atmospheric condition and due to regional is the climatic condition and sometime monsoon earlier or sometime late. Monsoon are not equally distributed. Coastal area like Kerala, West Bengal and Odisha, these have heavy rainfall. A very interior region like Haryana, Madhya Pradesh, these have less rainfalls. There is a rainfall is not a equally distribution here. And third point here, when the monsoon arrive, it will give a heavy rainfall which continue to be a several day. And this is known as the burst of monsoon. There is a most important question for the exam view. What is a burst of monsoon? When the monsoon arrive, it will give a heavy rainfall. There is a only means is a heavy rainfall which will continue to several day. Heavy rainfall continue for a several day. It's known as a burst of monsoon. And this occur mainly is a Kerala coastal where is the rich of frost. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, मानसून का रचना तंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानसून का आखिर किस प्रकार से जो है यहाँ पर वितरण दर्शाया गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। तो आप समझ सकते हो कि मानसून शब्द का जो हमें मिला है उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ ही होता है मौसम या ऋतु। वर्ष के दौरान पवनों की दिशा में जो है ऋतुवर्त परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। यानी वर्ष भर में दौरान पवनों की दिशा में जो ऋतुवर्त परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। यानी जो ऋतु में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसी को ही हम मानसून कहते हैं। गर्मी के दौरान उत्तर भारतीय मैदान के भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म होता है। यानी गर्मी के दौरान उत्तर भारतीय मैदान के भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन भागों में दैनिक अधिकतम तापमान जो है 45 सेल्सियस से 47 सेल्सियस तक हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी गर्मी के लिए ही जाने जाते हैं। और इन प्रदेशों में दैनिक अधिकतम तापमान काफ़ी रहता है 45 से 47 सेल्सियस टेम्परेचर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। नीचे दी गई तालिका में हम जलवायु के पीढ़ियों को दर्शाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी हम तालिका देखेंगे उसमें देखेंगे कुछ क्षेत्रों को जहाँ पर जो है वर्षा और रेनफॉल में कितने जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों और मासिक औसत तापमान जो सेल्सियस में तापमान और सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो सेंटीमीटर में जो होती है रेनफॉल को हम नापते हैं और तापमान को जो है सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, बट यहाँ सेल्सियस के रूप में दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए स्थान यहाँ दिया हुआ है लो का तापमान जो होती है आप देख सकते हो माइनस में रहता है। सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन वर्षा देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम होता है 10, 8। तो समझ सकते हो कितना कम यहाँ पर सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं शिलोंग की बात करें तो शिलोंग जो है सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है और यहाँ जून के समय जो है 476 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। यानी देखा जाए तो जून से लेके सितंबर तक 300 के ऊपर यहाँ पर जो है बरसात की जो है पारा नोट डाउन की जाती है। वहीं दिल्ली में देखें तो दिल्ली में जो है मार्च से लेके जो है जुलाई, अगस्त तक यहाँ पर 30 सेल्सियस टेम्परेचर नोट की जाती है। यानी ये सारे टेम्परेचर जो है गर्मियों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो बरसात जो है जुलाई में होती है जहाँ 186 सेंटीमीटर होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे करें जैसलमेर का, जैसलमेर जो है तापमान के लिए जाना जाता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मार्च से लेके यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगस्त तक से लेकर सितंबर तक टेम्परेचर जो है 30 से अबव ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहीं वर्षा की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है।
अब देखिए यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर वर्षा की बात की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा दर्ज की जाती है। उसके पश्चात अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है सबसे अधिक वर्षा यहाँ नोट की जाती है। आप देख सकते हो कि 465, 613, जैसे कि देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर बरसात काफ़ी तगड़ी होती है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मुंबई काफ़ी बरसात के लिए जाना जाता है। इवन कि बरसात के टाइम देखा जाए तो मुंबई की बहुत बुरी हाल हो जाती है, और ये हर साल होता है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में टेम्परेचर जो है मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक जो है टेम्परेचर 30 से अबव ही रहता है। और यहाँ पर बरसात जो होती है यहाँ अक्टूबर के आसपास होती है, जहाँ पर 306 से लेके 350 तक देखा गया है। तो ये बरसात जो होती है मई सर्दियों के टाइम यहाँ पर तगड़ी होती है। वहाँ वही देखें हम त्रिपुरम का ये तापमान देखें तो यहाँ पर जो है 30 सेल्सियस से नीचे ही टेम्परेचर रहता है, लेकिन यहाँ बरसात जो है मैक्सिमम 300 से भी अधिक है। कहते हैं दिल्ली और जोधपुर में मई के महीने में औसत अधिकतम तापमान जो होती है 33 सेल्सियस से अधिक होती है, और इस तरह के उच्च तापमान उन क्षेत्रों की हवा को काफ़ी गर्म कर देती है। कहते हैं गर्म हवा जो है ऊपर उठती है तथा सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और इस कम दबाव मानसून गत के रूप में भी जाना जाता है। और यह पश्चिम में जो है जैसलमेर और पूर्व में उड़ीसा के बालासोर के मध्य स्थित होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तापमान जो है यहाँ पर दिल्ली और जोधपुर में जो है 33 सेल्सियस के आस से पास रहती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसी बात को अगर हम देखें मानचित्र में तो काफ़ी क्लैरिटी और भी आ सकती है। अब यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हो कि भारत का मई का तापमान जो होती है, कहते हैं डिफरेंस एरिया में डिफरेंट टेम्परेचर नोट करना तो स्वाभाविक है, लेकिन देखा जाए तो भारत के जो है सेंटर में आप टेम्परेचर देख सकते हो 46 सेल्सियस से 45-42 के आसपास रहता ही रहता है। और ऊपर के साइड देखा जाए तो कम दबाव गत होती है। तो ये मैप को बीच से समझ सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है किन क्षेत्रों में कैसी दिखती है। कहते हैं 46 सेल्सियस टेम्परेचर जो बिहार के आसपास जो है काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के आसपास ही लग रहे हैं जहाँ 40 सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास बनी रहती है। तो ये मानचित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के उत्तर तापमान अपेक्षाकृत कम होती है। पानी भूमि की तुलना में अधिक समय में गर्म होता है इन क्षेत्रों में, इसलिए समुद्र के ऊपरी अपेक्षाकृत उच्च दबाव क्षेत्र बन जाता है। उत्तर दिए गए मानचित्र में 10 पॉइंट में हम देखा ही है कि ये घटनाक्रम को समझने की काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसके लिए। और इस प्रकार उत्तर मध्य भारतीय मैदान और हिंद महासागर का तापमान और इसके परिणाम स्वरूप वायुदाब में काफ़ी अंतर होता है। इस अंतर के कारण जो है समुद्र के उच्च दबाव क्षेत्र से पवनें उत्तर भारत के कम दबाव के क्षेत्र पर की ओर चलने शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर के भूमध्य रेखा क्षेत्रों में भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर हो जाती है। इन हवाओं की दिशा सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और यह दिशा भारत में सर्दियों के दौरान जो है प्रचलित व्यापारिक उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम पवनों को बिल्कुल ही विपरीत है। पवनों की दिशा का यह उत्क्रम उत्तर पूर्व के से दक्षिण पश्चिम और इसके विपरीत मानसून के रूप में जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात यहाँ पर एक मैप आया है, ये अग्रणी दक्षिण पश्चिम मानसून और जून का तापमान को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर किस तरह से जो है वेरी कर रहा है। यहाँ जून के समय सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया गया 40 सेल्सियस टेम्परेचर, वहीं 45 सेल्सियस। लेकिन ये जो है इसके दबावों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। जो एरो लगे हुए हैं वो बता रहा है कि जो ये पवनें किस प्रकार के दूसरे साइड की तरफ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है अरब सागर और जो है बंगाल की खाड़ी से ये सारे पवनें उठ रही है आगे की तरफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानचित्र है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन हवाओं की उत्पत्ति गर्मी समुद्र के ऊपर होती है, इसलिए इनमें बहुत अधिक नमी होती ही है। जब यह आंध्र पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पहुंचती है तो ये पूरे भारत में जून से सितंबर के बीच 4 महीनों में व्यापक वर्षा भी करती है। जून से सितंबर के बीच भारत की कुल वार्षिक वर्षा का देखा जाए तो 80% से 90% तक होता है। तो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हो कि जून से सितंबर के बीच भारत कुल वार्षिक वर्षा का जो है
80 से 90% तक होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मानसून की विशेषता। कहते हैं मानसून की अपनी एक विशेषता होती है, तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मानसून पवनें अस्थायी पवनें नहीं होती है, यानी मानसून पवनें जो होती है अस्थायी पवन नहीं होती है, और वह प्राकृतिक में अनियमित है एवं वातावरण की विभिन्न दिशाओं और जैसे क्षेत्रीय जलवायु दशाओं से काफ़ी प्रभावित होती है। किसी वर्ष मानसून जल्दी आता है तो कभी देर से आता है, तो ये जनरली भारत में देखने को मिलता है। कभी मानसून बहुत जल्दी आता है तो कभी मानसून जो है बहुत ही देर से आती है। मानसून सामान्य रूप से जो है वितरित नहीं है। भारत में देखा जाए तो मानसून जो है सामान्य रूप से वितरित नहीं है। केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी देखा जाए तो मानसून जो है सामान्य रूप से वितरित नहीं है, और केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र भारतीय वर्ष जो है भारी वर्षा यहाँ पर करते हैं, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे आंतरिक क्षेत्रों में कम वर्षा प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हो कि मानसून की विशेषता हर क्षेत्र में अलग अलग दर्शाया गया है। उसके पश्चात हम तीसरे पॉइंट की बात करें, कहते हैं जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है। जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है, और यह मानसून के फटना के रूप में जाना जाता है। यानी मानसून को फटना कहते हैं, यानी बहुत तेज़ बारिश हो और कई दिनों तक रहे तो इसे हम क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून, यानी मानसून का फटना। ठीक है, और यह मुख्य रूप से केरल तट पर होती है, जहाँ यह सबसे पहले पहुँचता है। The one next topic is the most important here, cycle of season. There are cycle of season here. Our country India is enjoyed to the variety of season due to the geographical location. Our country India enjoy the variety of season due to the geographical location. Now you will be now about their season of India and their unique feature. We have a 4 season is mainly here. A cold weather season December to February, hot weather season March to May, and advancing south is the best monsoon season is June to September, and post deteriorating monsoon season October to November. And you will be now is more about is them to the flowing section. The next year is the cold weather season. The duration of the cold weather season is from December to February. The temperature decreases from the south to the north, and December and January are the coldest months, and there is an average temperature in the north is 12 Celsius to 15 Celsius, and the south is 25 Celsius. Forest is the common in the northern and northwest India. There is a light rainfall in this region due to western disturbance. Higher slope of the Himalayas spreads a snowfall. During the winter season, northeast trade winds travels over to India. They blow from land to sea, and for the most part of country, it is a dry season. However, the Tamil Nadu coastal receive a winter rainfall due to these winds. A part of northeast trade is a winds blow over the Bay of Bengal. They gather is a moisture which is causing a rainfall in their coastal Tamil Nadu, while the rest of the country remain dry. In the northern part of the country, the weather is marked by the clear sky and low temperature and low humidity. The winter rainfall is very important for the cultivation of Rabi crop. There is a most important here. In the northern part of the country, the weather is marked by the clear sky and low temperature and low humidity. The winter rainfall is very important for the cultivation of Rabi crops. On your screen, there is the most important map here, a cold weather season and mean temperature of January. There is important. The temperature is varied about here of 12.5 Celsius of Punjab and Haryana side, and 15 Celsius temperature, and 17 and 22 here. There is the most important map on your screen. The next here map, there is important here, the cold weather winds of January month. The cold winds here of weather, that is important. The coming to the air of Pakistan side and all over India, there is a blow here. There is an important map here. The next year, hot weather season. Hot weather season by the end of February. The temperature start rising
And so from March to the May, it is a hot weather season. We find high temperature in the plain western part of India and in the central part of the peninsular India. In the northern plain is thus there is gated a low pressure which is called monsoon toward the create here. We stand there from to the Jaisalmer in a west Rajasthan to be a Jharkhand and part of Odisha to the east. However, over India is ocean and south of the equator, high pressure belt began to develop in this season. In a northern West India, is afternoon dust storm are common. There is a dust storm are common. During to the summer, very hot and dry winds blow over the northern plain. They are localized called Lu. There is the important during the summer, very hot and dry winds blow over the North Indian plain, and this is called to the Lu. Suppose there's these hot winds may be causing the heat and sunstroke. This is also a season for the localized a thunderstorm associated with the violent winds and severity is downpour and often come accompanied by the hail. The best in this storm is known as the Kala Baisakhi. There's a Kala Baisakhi, but it's more important. In the West Bengal, this storm is known as the Kal Baisakhi. A climate before the month of the Baisak and toward the close of summer season, and pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in the earlier wrapping of mangoes and are often referred to the mango shower. That is called mango shower. And the next year, the advancing southwest monsoon season. The advancing southwest monsoon season here, after the scorching heat of summer season, people are eagerly wait for the rain which can give them to the relief. Farmers wait from the rain so that they can be prepared. There is a field for their next cropping season, Kharif. June to September are the month of advancing southwest monsoon season. By the end of May and monsoon thought there are further intense phase shifts over India due to the high temperature in the region. The general direction of the wind during this season from southwest to northeast, and these winds are strong and blow at average velocity of 30 km per hour. And this moisture, a lead and winds first hit at Andaman and Nicobar Island in the last week of May and Kerala coastal in the first week of June. With the violent thunder and the lightnings also, and this southwest monsoon that flow in the Indian varying about a major change in its weather. Two branches of southwest monsoon originate from Arabian Sea and Bay of Bengal. The Arabian Sea branch obstructed by the Western Ghat and give a heavy rainfall on the western side of West Ghats. It reaches to Mumbai by the 10 June when this branch crosses the Western Ghat and reaches the Deccan Plateaus and part of Madhya Pradesh. It gives a less rainfall as it is a rain shadow region. And further this branch reach in a northern plain by the 20th June. There is also important here. The monsoon wind that move from Bay of Bengal and strike Andaman and Nicobar Island, northern state and coastal area of West Bengal and cover the whole of India by 5th of July. The cases of heavy rainfall in the region, however, quantity of rainfall decrease as they move toward the west over to the northern plain. For example, rainfall at Kolkata is 120 centimeter and Allahabad is 91 centimeter and Delhi is here 56 centimeter. You must have seen that rainfall does not be continue for several days. The monsoon tend to be have break in its rainfall which is causing wet and dry spells. This means that a monsoon rainfall occur only a few days at a time. Rainless dry spells occur in between as the monsoon come after the hot and dry summer season. The rainfall varying down their temperature and we can see this decline in the form of 5 Celsius to 8 Celsius
between mid-June and mid-July. And this is the time when many part of India face a flood also. There is a important many part of India face a flood also in this time. This is a mainly because a heavy rainfall and over inhabited to the manage over to water resources more systematically. On the other hand, there are many areas from the experience and about their condition during this season. That's important. On your screen, there is a most important map, advancing monsoon. Advancing monsoon show you on the screen. There is a most important arrow show there is a movement. The arrow show here a movement on the map. That's important here. The next year, retreatings are post monsoon season. October and November are the month of post or retreating season monsoon. And the temperature during to September, October start decreasing in the North India. Monsoonal thought there also become a beak over to Northwest India. And this is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds a beacon and start withdrawing gradually from North India planned by the November. In October to the weather remaining humidity and the warm due to continued high temperature and moisture of the land in month of October. In the northern plant, hot and humid weather become abrasive at this time. It is commonly called October heat. However, to about the end of October, temperatures start to decrease in making our night pleasant. There is a night here, very pleasant, and this is also the time of cyclonic storm. Best development in the Bay of Bengal as the low pressure of North India shift to this area. And this storm create a heavier in the coastal area of Odisha. Andhra Pradesh and Tamil Nadu, especially in the deltas of Nadis, the Godavari and Krishna rivers. On your screen here, treating monsoon here. There is a time period of September, October and then October 15. There is a most important treating of monsoon here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मौसम के चक्र। देखिए मौसम के चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम मौसम देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के मौसम है और क्या ये विशेषता लेके अपनी विशेषता को दर्शाता है। हमारे देश भारत में भौगोलिक स्थिति के कारण मौसमी विविधता देखने को काफ़ी मिलती है। अब हम भारत के मौसम के बारे में जानेंगे और इसके अनूठी विशेषता के बारे में और भी विशेषता से चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो भारत में जो है 4 तरह के मानसून पाए जाते हैं। शीत ऋतु जो दिसंबर फरवरी के समय आता है, ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मई तक रहता है और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु जो जून से सितंबर तक होता है और पीछे हटते मानसून की ऋतु जो अक्टूबर नवंबर तक होता है। और इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहें त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। हमारे समक्ष पहला पॉइंट जो आता है शीत ऋतु। देखिए शीत ऋतु की अवधि दिसंबर से फरवरी तक होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटते जाते हैं, यानी देखा जाए तो तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर घटता हुआ नजर आता है। और दिसंबर तथा जनवरी सबसे अधिक ठंडा वाले महीने होते हैं। ये तो आपको भी पता है कि दिसंबर और जनवरी सबसे अधिक ठंड पड़ती है। उत्तर भारत में जो है औसत तापमान 12 से 15 सेल्सियस होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 से 15 सेल्सियस तो बहुत काफ़ी वेरिट करता है यहाँ पर। जबकि अगर दक्षिण भारत में हम देखें तो यहाँ पर 25 सेल्सियस होती है। और इस दिनों तक उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रायः पाला पड़ती है, यानी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में काफ़ी पाला देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। और इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षेपों से हल्की बारिश भी साथ साथ होती ही रहती है। हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता हुआ नजर आता है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में हिमपात होना एक स्वाभाविक बात इस समय बनाता है। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती ही रहती है और वह भूमि से समुद्र की ओर चलती है, भूमि से समुद्र की ओर चलती है। और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक जो है शुष्क मौसम है, यानी देखा जाए तो अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। हालांकि तमिलनाडु तट पर सर्दियों में
इन हवाओं के कारण वर्षा होती ही है। कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों का एक भाग बंगाल की खाड़ी के जो है ऊपर से गुजरते हुए नमी ग्रहण कर लेती है, इसलिए तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है, जबकि देश का बाकी भाग शुष्क रहता है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है कि उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों का एक भाग बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरते हुए नमी को अपने साथ ग्रहण कर लेती है और इसलिए तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है, जबकि देश का बाकी भाग शुष्क रहता है। देश के उत्तरी भाग में साफ आसमान, कम तापमान और कम नमी होती है। रबी की फसल के लिए शीत ऋतु की हल्की वर्षा बहुत काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए रबी की फसल जब लगी रहती है, अगर शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है तो समझिए ये काफ़ी किसानों के लिए मददगार सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपके समक्ष मैप आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठंड के मौसम में जनवरी का औसतन तापमान, अब यहाँ देख सकती हो कि हर क्षेत्र में तापमान जो है बदल रहा है। ठंड का मौसम है तो जनरल सी बात है, जितना ऊंचाई बढ़ेगा तापमान उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के साइड देख सकते हो जहाँ चंडीगढ़ के आसपास दर्शाया गया है 12.5, तो यहाँ पर बहुत काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाता है जनवरी के समय। वही अगर राजस्थान तक की बात करोगे तो 15 सेल्सियस होता हुआ नज़र आएगा। अगर वही हम बिहार, अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आसपास देखें तो 17 सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ वेरी करता है। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊंचाई जिन क्षेत्रों में होगा वहाँ पर टेम्परेचर जो बहुत अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके समक्ष मैप है वो ठंड के मौसम में जनवरी के औसतन तापमान को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा मैप जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, ये जनवरी माह की ठंडी मौसमी हवाएं हैं। कहते हैं ठंडा उतना ही बढ़ेगा जैसा इसका मौसम यहाँ पर डिपेंड करेगा, यानी हवाओं का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और देखा जाए तो देखिए हवाओं का जो भारत में एंट्री हो रही है वो पाकिस्तान साइड से हो रही है, और इवन कि यहाँ पर जो है चाइना साइड से भी एंट्री हो रही है और जो है दक्षिण भाग की तरफ ये गमन कर रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और ये बताता है कि जो ये किस प्रकार हवाएं जो है तापमान को गिराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ग्रीष्म ऋतु। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु फरवरी के अंत तक तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। और मैदानों, भारत के पश्चिमी भागों और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है, यानी मैदानों और भारत के पश्चिमी भागों और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है। और इस समय यहाँ एक लंबा संकरा और निम्न वायु दाब क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, यानी देखा जाए तो इस समय यहाँ जो है एक लंबा संकरा और निम्न वायु दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसे मानसून का निम्न वायु दाब गत भी कहते हैं, इसे मानसून का निम्न वायु दाब गत भी कहा जाता है। और इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पूर्व में झारखंड तथा उड़ीसा के कुछ भाग तक होता है। हालांकि इस ऋतु में विस्तृत विविध की दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर ऊंचा वायु दाब का क्षेत्र विकसित होने लगता है। कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में जो धूल भरी आंधियां चलती है, देखा जाए तो इस मौसम के दौरान जो है धूल भरी आंधियां चलती है। और ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में दोपहर के बाद शुष्क और गर्म पवनें चलती है, और जो ये पवनें चलती है गर्म पवनें, उसको स्थानीय नाम लू के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कि आपके फेस पे ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, तो ये लू के कारण ही होता है, क्योंकि आप खुल जाते हो, बाहर निकलते हो, कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाते हो, और इसके कारण क्या होता है, ये जो तेज़ गर्म हवाएं होता है वो हमारे कोमल स्किन से टकराता है और उसको जो है जला के रख देता है, इसलिए इसको हम लू लगना भी कह सकते हैं। और इस गर्म सुलझाने वाली जो पवनों में कभी कभी लू लग जाती है हमें, क्योंकि ये गर्म हवा जो कि हमें झुलसा भी सकता है, यानी झुलसाने वाली पवनों को कभी कभी लू भी लग जाता है, आम बात होती है। और इस मौसम में जो है तेज़ धूल भरी आंधियाँ भी चलती है और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल जाता है। वर्षा के साथ साथ कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है, यानी ओले भी गिरते हैं, जैसे आप पत्थर कहते हो। होता तो ये बर्फ़ के टुकड़े हैं, लेकिन हम साधारण शब्दों में इसको पत्थर भी कह सकते हैं। पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीनों में इन तूफ़ानों को हम काला वैसाखी आपदा के रूप में जाना जाता है, यानी बंगाल में ये बैसाख के महीने को हम
काला बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और गर्मी के मौसम की समाप्ति की ओर मानसून पूर्व की बारिश प्रायः केवल केरल और कर्नाटक में होती है और वो आमों के जल्दी पकने में काफ़ी सहयोग देते हैं, क्योंकि ये जो गर्म हवाएं चलते हैं वो आमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसको पकने में काफ़ी मदद करते हैं। और प्राय इसे आम्र वृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी मैंगो शावर भी एग्जाम में आ जाता है, यानी इसे आम्र वृष्टि कहते हैं। तो याद रखना, ये जो होती है गर्म हवाएं होती है जो आम को पकने के लिए काफ़ी सहायक होते हैं, और इसे ही हम आम वृष्टि या जो है मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, यानी आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। कहते हैं गर्मियों को जो है चिलचिलाती गर्मियों के बाद लोगों को जो है बेसब्री से बारिश के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जो उन्हें राहत दे सकती है। किसान बारिश के लिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो अपने खेतों को खरीफ के फसल के लिए तैयार कर सकें। यानी देखा जाए तो किसान बारिश के लिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो अपने खेतों को खरीफ की फसल के लिए तैयार कर सकें। और जून से सितंबर आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मानसून ऋतु के महीने हैं। क्षेत्र में तापमान जो है के कारण उत्तर भारत में मई के अंत तक जो है मानसून गत और तीव्र हो जाती है। इस मौसम के दौरान हवा की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होता है और यह पवनें काफ़ी प्रबल होती है तथा इनकी औसत गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि यहाँ पर औसत गति जो होती है पवनों की वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है नापा जाता है। और ये अर्ध पवनें मई के अंतिम सप्ताह में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुँचते हैं और एक गर्जन के साथ वर्षा करती है, यानी काफ़ी गरजती है फिर जाके वर्षा होता है। जून के जो है प्रथम सप्ताह में केरल के तटीय भागों में तेज गर्जन के साथ वर्षा करती है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आकर इसको मौसम में बहुत अधिक परिवर्तन करती है। कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, एक तो होता है अरब सागर की शाखा और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखाओं खाड़ी की शाखा। कहते हैं अरब सागर की शाखाएं पश्चिमी घाट द्वारा बाधित होने पर पश्चिमी घाट को पश्चिम और भारी वर्षा करती है, यानी अरब सागर जब काफ़ी बाधित होती है तब जाके पश्चिम घाट के पश्चिम और काफ़ी भारी वर्षा करती है और यह जून को जो है मुंबई पहुंचती है। और आपको पता ही है कि जून में सबसे अधिक बारिश जो होती है मुंबई में ही होती है, जहाँ 600 से ऊपर दर्ज किया गया है। और 600 का मतलब है बहुत अधिक बारिश होना, ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखा ही जाता है मुंबई हमेशा ही पानियों में डूबी रहती है। कारण ये भी है कि मुंबई जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है और वहाँ जो है आपको पता है कि जो समुद्र के किनारे होगा वहाँ पर वर्षा होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। जब से कहा पश्चिमी घाटों को पार करती है और दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सों तक पहुँचती है तो यह कम वर्षा करती है, क्योंकि यह एक विशेष छाया क्षेत्र होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे पहले जो बरसात का बूंदें पड़ती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। और इसका कारण होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी से जब हवाएं उठती है तो सबसे पहले जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करती है और इसके पश्चात ये पवनें उत्तर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल के तटीय भाग तथा जो है 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा करती ही रहती है। यानी देखा जाए तो इसके पश्चात ये पवनें जो है उत्तर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल के तटीय भाग होता था 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा करती है और इनसे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। हालांकि उत्तरी मैदान में जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, यानी उत्तर मैदानों में जैसे जैसे पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। उदाहरण के लिए कोलकाता में वर्षा जो होती है 120 सेंटीमीटर होती है। वहीं इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में जो है 51 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दिल्ली में केवल 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो देखते हैं ये समझ जो है इसके अंतर्गत ये वर्षा जो है कम होती चली जाती है डिफरेंट क्षेत्रों में। आपने देखा होगा कि कभी कभी वर्षा बहुत दिनों तक नहीं होती है, जनरल सी बात है, और बीच बीच में सूर्य काला आता रहता है
और इसे आंध्र और शुष्क दौर आते रहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि मानसून वर्षा का एक में कुछ ही दिनों में होती है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि मानसून वर्ष एक बार में कुछ ही दिनों ही होती है, यानी एक वर्ष में कुछ ही दिनों ही होता है, जनरल बात है। और वर्षा रहित शुष्क दौर इसके बीच में आते ही रहते हैं, क्योंकि मानसून गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बाद ही आता है, इसलिए वर्षा होने पर तापमान कम हो जाता है। मध्य जून और मध्य जुलाई के बीच तापमान जो होती है 5 सेंटीमीटर से जो है 80 सेल्सियस तक घट जाती है। यानी देखा जाए तो जून और मध्य जुलाई के बीच तापमान जो होता है 5 सेल्सियस से जो है 8 सेल्सियस तक घट जाता है। और इस समय भारत के अनेक भागों में बाढ़ भी आती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो जो है मध्य जुलाई के बीच तापमान 5 से 8 सेल्सियस तक घट जाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और बाढ़ के आने के कारण जो है अधिक वर्षा और जल संसाधन के जो व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन में हमारी असमर्थता होती है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस समय सूखा पड़ता है। तो ये तो जनरल सी बात है कि भारत के कई क्षेत्र जो होते हैं वो सूखे के चपेट में होते हैं, और कई क्षेत्र जो होते हैं बाढ़ के चपेट में होते हैं, और कई क्षेत्र जो होते हैं वर्षा के चपेट में होते हैं। तो यहाँ इतनी विभिन्नताएँ भारत में ही पाया जा सकता है। इस मैप में आप देख सकते हो कि आगे बढ़ते हुए मानसून ऋतु को दर्शाया गया है। यानी अगले मानसून, अभी देखा ही आपने था कि मानसून के ऋतु जो होते हैं देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, और यहाँ एरो भी बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ नज़र आ रहा है और भारत के डिफरेंट पार्टों में जा रहा है। तो जनरल सी बात है, जैसे आप देख सकते हो अरब सागर के साइड भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र के यानी जो है मुंबई के साथ बहुत तेज़ वर्षा जो है सहना पड़ता है। इवन कि अगर आप देखिएगा तो इधर जो है अरुणाचल प्रदेश साइड यानी असम के साइड भी काफ़ी वर्षा देखने को मिलता है। यहाँ तो काफ़ी वर्षा होता है, इसे चेरापूंजी जो है वर्षा का मेन स्पॉट माना गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानचित्र है जो आप यहाँ पर मैप में देख रहे हो। उसके पश्चात है हमारे समक्ष पीछे हटते मानसून की ऋतु। कहते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने पीछे हटते मानसून ऋतु के हैं, और कहते हैं सितंबर अक्टूबर के दौरान तापमान उत्तर भारत में कम होना शुरू हो जाता है। यानी उत्तर भारत में जो है कहते हैं तापमान कम होना शुरू हो जाता है इस समय, और उत्तर पश्चिम भारत में मानसून गति भी कमज़ोर पड़ने लग जाता है, और यह धीरे धीरे एक उच्च वायुदाब प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं नवंबर तक उत्तर भारतीय मैदान के धीरे धीरे कमज़ोर होकर आपस होने लग जाती है। अक्टूबर के महीनों में अधिक तापमान और नमी के कारण मौसम गर्म और नरम रहता है। वहीं उत्तरी मैदान में गर्म और आर्द्र मौसम इस समय कष्टदायक होता है। इसे आमतौर पर क्वार की उमस भी कहा जाता है। यानी काफ़ी यहाँ पर तापमान जो है कष्टदायक होता है, इसलिए आमतौर पर इसे जो है क्वार की उमस भी कहा जाता है। हालांकि अक्टूबर के अंत में तापमान थोड़ा गिरने लग जाता है। अक्टूबर के अंत में तापमान गिरना बेशक ही लगता है, और रातें काफ़ी सुहाने होने हो जाती है। और इस समय उत्तर पश्चिम भारत निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। फलस्वरूप जो है बंगाल की खाड़ी में चक्रवर्तीय तूफान का जो है विकसित होते हैं, और इन चक्रवातों को जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई प्रदेश में व्यापक विनाश भी करता है। तो आपने देखने को मिलता भी है। कहते हैं साल में हमेशा जो है चक्रवात आना स्वाभाविक बना देता है, और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो हमें सदैव ही देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये चक्रवात भी काफ़ी प्रभावित करता है भारत के जलवायु को। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पीछे हटते मानसून का कुछ दृश्य है। आप देख सकते हो किस प्रकार जो 15 सितंबर, अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक जो है मानसून पीछे हटने लग जाता है, और ये वो समय काल होता है जहाँ पर मानसून जो होती है सदैव के लिए ख़त्म हो जाती है, यानी इसका विराम अवस्था में आ जाता है। यानी साल भर के जो बरसातें होती है ये पीछे हट जाती है और बरसात कुछ समय के लिए रुक जाती है। लेकिन भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। भारत में तो आपको पता ही है कि हर समय कहीं ना कहीं जो है रेनफॉल होती रहती है। इवन कि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चेरापूंजी के साइड, तो यहाँ पर तो कंटिन्यू बरसात होती ही रहती है। इसलिए बेशकली मानसून हटते मानसून है तो कुछ ही क्षेत्र में जो है मानसून जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है। The next topic is important here, distribution of rainfall. There is a most important
distribution of rainfall. The rainfall in India is highly uneven over to the period of time in a year. As we have moved from east to the west in the northern plan, we observe that in the central India rainfall is a decrease. In a peninsular region, India has a rainfall decrease from a coastal to the entire part. In the northeast India, the rainfall increasing with altitude. India is a unique example of rainfall distribution which mark a contrast is the both on the rainiest and a rest place for the world are localized in India itself. Can you think why? Particularly is the variation in the rainfall in India can be shown under the following heading. Observe the given map and find out the state under the given category. There is an important category here. The first category here, area of heavy rainfall. Area of heavy rainfall. The heavy rainfall here more than 200 centimeter. The maximum rainfall in India is occurred in the western coastal, sub-Himalayan region of northeast, Kargaro, Khasis and Jaintia Hill of Meghalaya. There is a maximum rainfall is received here. And the next year, the area of moderate rainfall. The moderate rainfall means is 100 centimeter to 200 centimeter. Area receiving 100 or 200 centimeter rainfall in India include some part of the Western Ghat and the west of Bengal, Orissa, Bihar and many states. There is a severe rainfall moderate is 100 to 200 centimeter. That's important. And the next year, area of low rainfall. Area of low rainfall means 60 to 100 centimeter. And this is the reason for low rainfall, which include part of Uttar Pradesh, Rajasthan, entire Deccan Plateau. Here, a low rainfall, 60 to 100 centimeter. And the next year, area of adequate rainfall. There is a less than 60 centimeter. The less than 60 centimeter, and this region of scant rainfall and the western part of Rajasthan and Gujarat. And the Ladakh, south central part of receive rainfall less than 20 centimeter. There is a very amazing here. The area in equator rainfall less than 60 centimeter. There are part of rainfall here. Rajasthan, Gujarat, Ladakh, south central part of receive there are less than 20 centimeter rainfall. On your screen, there is a most important India annual rainfall. There is the dark blue color is above the 200 centimeter represent here. You know that there show on your screen the Meghalaya areas is the maximum here 200 centimeter, but the Kerala, Maharashtra, Mumbai, there is some important. There is a 200 above here. The Mumbai is receive here a 400, 630 rainfall here. And the other side is a light blue here, a maximum Bihar and the Madhya Pradesh and the other side here. There is a 100 to 200 centimeter rainfall here. And other is a 60 to 100 centimeter is the maximum here. The important Rajasthan area recognized here. And also is a Gujarat. And below to the 60, there is almost a Rajasthan. You know that examiner is asking the many type of question, the higher rainfall and lower rainfall. Okay? उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वर्षा का वितरण। देखिए वर्षा का वितरण हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्षा का वितरण भारत में देखा जाए तो बहुत ही अंतर होता है। कहीं अधिक बारिश हो रही होती है तो कहीं अधिक सूखा होता है, तो कहीं बारिश का नामो निशान नहीं होता है। तो ये बहुत विषमताएँ भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अगर वर्षा के वितरण की हम बात करें तो वर्षा किसी एक समय में भारत में वर्षा का वितरण अत्यंत असामान्य है और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से मैदानी तथा मध्य भारत में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। प्रायद्वीपीय भारत में तटीय क्षेत्रों में आंतरिक क्षेत्रों की ओर वर्षा होती जाती है और देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भारत में ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है। और वर्षा के वितरण में बहुत अधिक विषमताएँ वाला भारत में एक अनोखा उदाहरण है।
यानी वर्षा के वितरण में बहुत अधिक विषमताएं वाला भारत में एक अनोखा उदाहरण है। और विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान तथा सबसे कम वर्षा वाले स्थान भारत में ही पाया जाता है। क्या आप बता सकें क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि भारत वर्षा के जो स्थानीय विषमताएं के निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। अगर आप जानोगे, आगे समझोगे और मानचित्र में भी देखोगे तो वर्षा के बहुत ही अंतर देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं कहीं सूखा है तो कहीं डूबा हुआ है, तो ये भारत की विषमताएं हैं। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में आने वाले राज्यों के मालूम कीजिए कि यहाँ बरसात क्या होता है। अब इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है और 4 बातें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें उच्च वर्षा का क्षेत्र जो सामान्य 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अगर बात करें 200 सेंटीमीटर से अधिक की, तो यह क्षेत्र पश्चिमी तट, पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र और मेघालय की खाड़ी, खासी, जयंतिया पहाड़ी पर वर्षा अधिक होती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर मुंबई को भी इसमें नोट डाउन किया जाता है क्योंकि मुंबई में 600 से अधिक सेंटीमीटर बरसात होती है। लेकिन मेघालय की बात करें तो यहाँ पर जो है साल भर वर्षा होता ही रहता है, वो भी बहुत काफ़ी हैवी। सामान्य वर्षा की बात करें हम तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जो भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कई अन्य राज्यों में देखने को मिलता है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है दर्ज की जाती है। वही अगर हम कम वर्षा के क्षेत्र को मापन करें जो कि 60 से 100 सेंटीमीटर के क्षेत्र के मध्य है, तो यह कम वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान तथा दक्कन पठार के आंतरिक भाग इसी के अंतर्गत जो है नोट डाउन की जाती है। वही हम बात करें पर्याप्त वर्षा के क्षेत्र जो 60 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं, यानी ये अल्प वर्षा का यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में शामिल है, जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात, लद्दाख, दक्षिण मध्य भाग जो कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा करती है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में इतनी विभिन्नताएं पाई जाती है बरसात के अंतर्गत। अब आपके समक्ष जो मैप यहाँ पर आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में वर्षा की किस प्रकार जो है इतनी विभिन्नताएं हैं। अब देखिए जो डार्क ब्लू यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर है। और कहते हैं 60 से कम सेंटीमीटर जो आप देख सकते हो कि राजस्थान को जो मेन बनाया गया है। बाकी महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों ये बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है जो कि मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर हमेशा 2 ही क्वेश्चन पूछता है, या तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो मेघालय यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास आता है, और जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है जो राजस्थान, गुजरात आता है। तो आपको यही 2 बातों को जो है दिमाग में रखना है और एग्जामिनर कभी भी अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आगे पूछेगा तो देखिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बरसात कहाँ होती है, तो जनरल सी बात है ये क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है उत्तर प्रदेश के भी है, बिहार के भी है और उत्तराखंड भी कुछ नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात जो है नोट डाउन की जाती है। और वहीं अगर देखें 60 से 100 सेंटीमीटर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ भाग भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है इवन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जो मैंने बात बताई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक वाले क्षेत्र को और सबसे कम वाले क्षेत्र को जो है आपको नोट करना चाहिए, एग्जामिनर इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। The next topic is the most important here, social cultural life. There is an important here, social cultural life here. You are now well aware about the cycle of season, but a second thoughts come to our mind that do the relationship between the season and our life. Are they so important that they affect our life? The answer is yes. The answer is here, yes. They do. They do affect our social and cultural life. As India is an agricultural country, the main economical activity of agriculture is totally dependent on the cycle of season. The time of Kharif crops is advancing monsoon season and harvesting is a post-monsoon season. And Rabi crop is growing to winter and Jayat crop is at the end of the winter season. And flood drought or hindrance in the economical growth of nation. Our economic is agro-based economy. There is the most important social cultural life here depended. All our activity are relative with their season. As the winter season come to the day become a shorter, and
start purchasing a wooden clothes, groundnut, elements, and the calories-rich food because very important in our diet. In spirit of cold weather, people celebrate many festivals like Makar Sankranti in many states, Lodi in Punjab, and Pongal is Tamil Nadu, and month of January. Basant Panchami is also celebrated in the month of February, in which people pray to God harvest. And summer season is the very dry but remained as a juicy fruit, ice cream, and variety of drink. What are the fruit available in this season? Holi and Baisakhi are the main festival of the season. And by the end of the summer, farmers start to preparing their field so there can be a welcome to the rain. This is a time when the people of Kerala celebrate Onams, which is the coincide with there is a harvest season. And post monsoon season harvesting time, it is also festival time of Dasahara, Durga Puja, and Diwali, which are celebrated all over the India. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। देखिए, बरसात के अंतर्गत या कहते हैं मौसम के अंतर्गत बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन देखने को मिला है। कहते हैं अगर भारत में देखा जाए तो मौसम के अंतर्गत ही बहुत से कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक तो वैल्यू ही अधिक होती है। जब आप मौसम चक्र के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी हमारे मन में आता है और आपके मन में भी उठेगा कि मौसम हमारे जीवन के बीच क्या संबंध है। क्या मौसम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? क्या हमारे जीवन में मौसम का कुछ दायित्व भी है? क्या वो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं? तो जनरल सी बात है कि मानसून क्यों नहीं प्रभावित करेगा। कहते हैं मौसम चक्र जो है काफ़ी इंसानों के जीवन को प्रभावित करता है और इसके कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो हमारी सामाजिक संस्कृति जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको पता ही होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के आर्थिक गतिविधियों पूरी तरह से मौसम के चक्र पर भी निर्भर होता है। पुराने समय में देखिएगा तो लोग सदैव ही आसमान की तरफ टकटकी लगा के देखते थे कि कब बरसात होगी और कब वो फसल बोएंगे। खरीफ फसल का मौसम आगे बढ़ते मानसून की ऋतु है और कटाई जो है मानसून के बाद होती है। लेकिन रबी की फसल हम सर्दियों में उगाई जाती है और ज़्यादा फसल जो है सर्दियों के मौसम के अंत में लगाई जाती है, यानी मार्च अप्रैल में लगाई जाती है। यानी जनवरी फरवरी मार्च के काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जायद के फसल के लिए, क्योंकि आपको पता है जायद के फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं जो हमें गर्मियों से राहत देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। वर्षा और सूखा देश के आर्थिक विकास में बाध्य होते हैं क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था दृष्टि पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित करता है। यानी बाढ़ सूखा जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। हमारी सभी गतिविधियाँ ऋतुओं के साथ ही संबंधित है। हमारे देखिए जितना भी जो है गतिविधियाँ हैं सब ऋतु के साथ ही संबंधित है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो दिन छोटा हो जाता है और हम उन्हीं कपड़े खरीदने लग जाते हैं। वही मूंगफली, बादाम और कैलोरी युक्त भोजन हमारे आहार में जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और ठंड के मौसम के होते हुए भी लोग जनवरी के महीने में कई राज्यों में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और कई तरह के जो है समारोह का जश्न मनाते हैं। और देखिए कहते हैं फसल भी उसी तरह से लगाए जाते हैं। अगर सर्दी होती है तब मूंगफली भी आ जाता है, बादाम कैलोरी युक्त होते हैं जो हमें ठंड से बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वही बसंत ऋतु भी फरवरी के महीने में ही आता है और लोग फसल के देवता को अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना भी किया जाता है इसी मौसम में। गर्मी का मौसम बहुत ही सूखा है, लेकिन यह हमें रसीले फल, आइसक्रीम और पेय पदार्थों की विविधता को याद दिलाती है। क्योंकि गर्मी बेशक ही पड़ती है लेकिन हमें बहुत से ऐसे पेय पदार्थ मिलते हैं जो काफ़ी रसों से जो है भरी हुई होती है। तो ये जो है गर्मी के मौसम में ही आता है। और इस मौसम में उपलब्ध फल क्या है? होली और बैसाखी इस मौसम के मुख्य त्यौहार हैं और गर्मियों के अंत तक किसान अपने खेतों की तैयारी करने शुरू कर देते हैं ताकि वो बारिश का स्वागत कर सकें। और इस समय केरल में जो है ओनम का जश्न मनाते हैं जो उनकी फसल की कटाई का समय होता है और मानसून के बाद का समय फसल कटाई का ही होता है। और यह भी दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली के त्यौहार समय जो पूरे भारत में मनाया जाता है वो भी फसल के ही अंतर्गत मनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि फसल जो है हमारे सोशल जीवन में, सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
Our next topic is the most important here, global environmental change and it is the impact of Indian climate. There is the most important topic here, global environment change and it is the impact on the Indian climate. After studying the lesson, you must be have understood that India is fortunate to have a four clear season: summer, winter, spring, monsoon. There is a four season here: summer, winter, spring, and monsoon. However, this day one can notice disturbances in the cycle of season. This is due to the global warming, which is a warning topic of today as world. It has a significant political, social, and economical impact that may affect the almost every aspect of our lives and lifestyle. The global warming has a serious impact on the world as a climate, and the Indian cannot escape it. And do not you think that it is important for everybody to be now about it and thinks how each one of us can be contribute in reducing its stand. That is the most important here, or climate here. Let us just understand what is the global warming. Global warming there is important during their last decade of urbanization, industrialization, and population growth. The atmosphere has been polluted. Human activity increased the amount of carbon dioxide, chlorofluorocarbon, CFC, and other dangerous gases. About 51% of the solar energy is absorbed by the earth as a surface, and which increase its temperature. The rest of the heat is reflected is back into the atmosphere, and this help in maintaining temperature. But now, due to the pollution, some of the reflected heat is trapping by greenhouse gases. GHGs is the mainly carbon dioxide. It has increased the temperature of the earth as a surface, and there is evidence to be shown that the carbon dioxide level are still increased. Many countries have signed conventions to reduce GHGs under the UN framework. However, the current international agreements are still not effective enough to prevent the significant change in a climate. We already know that 70% of the Indians are working in the agriculture sector. The 70% Indians are working in agriculture sector, and any change in a temperature will be have on rise effect on the agriculture, and this will be have a serious social and economic impact on India. After reading their chapter, we can clearly see that a climate play a very important role in the human life. Our food, our festival, and our economics, everything is closely linked with the cycle of season. If the seasons are favorable, human life will be a good and comfortable. Since the state of the weather affecting agriculture, health, and transportation sector, it is important that all of us make some change in our lifestyle to reduce chlorofluorocarbon and other harmful gases. That is important here. देखा जाए तो यहाँ जो पॉइंट आया है वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन और उनका भारतीय जलवायु प्रभाव, कहते हैं वैश्विक टेम्परेचर की बात करें तो ये काफ़ी वेरी करता है इंडिया में। कहते हैं इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि भारत में भाग्यवश 4 स्पष्ट मौसम यहाँ पाया जाता है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, बसंत ऋतु हो या मानसून की ऋतु हो। हालांकि आजकल इस मौसम चक्र में विभिन्न पैदा होने लग गई है, बहुत ही अंतर आप देखने को मिल जाता है, और इसका प्रमुख कारण वैश्विक तापमान है। और वैश्विक तापमान के कारण सबसे बड़ा जो है हमारे देश में पोल्यूशन का फैलना। आपको पता है कि हमारे देश में पोल्यूशन इतनी अधिक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हो। इवन कि अगर दिल्ली के समय देखा जाए, दिल्ली में जो है मास्क लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर जो है तरह तरह के मशीन लगाए जाते हैं जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। और यही हालात आने वाला समय में बहुत से क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैं इस पर अधिक बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, और ये होगा ही, और इसमें कोई बदलाव होने वाला है ही नहीं। जो आज के विश्व का जो है लंबत विषय बन गया है, और ये विषय बहुत ही दर्दनाक विषय होगा। इसका बहुत अधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ना बहुत ही आम बात है, जिसने हमारे जीवन के हर पहलू और हमारी जीवन शैली को काफ़ी प्रभावित भी किया है। वैश्विक तापमान का विश्व जलवायु पर
बहुत ही गहरा गहरा प्रभाव पड़ा है और भारत इसका अपवाद नहीं है। क्या आप नहीं समझते हैं कि हमने प्रत्येक इसके वृक्षारोपणों में योगदान दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं हम इसमें योगदान दे सकते हैं, लेकिन हमारा योगदान इसमें कहीं सम्मिलित नहीं हो पाती है, क्योंकि आम व्यक्ति ये बात समझते नहीं हैं और वो सरकार पे ही टकटकी लगा के देखते रहते हैं, जो बहुत ही बड़ी विषमताएँ हैं। देखिए तो सबसे पहले यह जानना है कि वैश्विक तापमान होती क्या है। वैश्विक तापमान यानी विश्व के जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कहा जाता है। प्रदेशों के दौरान नगरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। कहते हैं इसको नगरीकरण के रूप दिया जाए, औद्योगिकरण और जनसंख्या में वृद्धि। तो इन सभी कारणों से जो हुआ है काफ़ी जो है हमारा प्रदूषण बढ़ता ही चला गया है। मानवीय क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य विनाशकारी गैसों की मात्रा वृद्धि हुई है। अब बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आप सोचिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ उत्पन्न होती है। आप सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जितने भी गाड़ी मोटर सब चलते हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये हमारी बस नहीं है, क्योंकि हम अगर ऑक्सीजन लेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन गाड़ी, मोटर, कार ये सब को हम छोड़ सकते हैं और इसकी जगह जो है हम इको फ्रेंडली जो है वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये हमारे कंट्रोल में है, अच्छी बात है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो जानबूझ के हम अपनी विनाश का खुद ही इसमें डूबते हैं। अब सोचिएगा कि त्रिपाण सेंटर ऐसा बात क्यों कह रहा है। आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो आपके घर में एसी लगा हुआ है, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज लगा हुआ है, सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ की जाती है। अब सोचिए, खुद ही विचार कीजिए कि आप जो उसमें से खाना निकालते हैं, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कोई असर नहीं पड़ता होगा। कंपनियों की बातों पे ना जाइए, कंपनियां तो हमेशा कहती है कि हमारा हर चीज़ सेफ सुरक्षित है। अब खुद सोचिए कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ठंडा हो रहा होता है चीज़, और आप स्वयं भी ठंडा होते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो आप पे क्या इफेक्ट डालता होगा। जब विश्व के वातावरण पे इतना इफेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाल सकता है, तो इंसान जो उसके ही गोद में सोया हुआ है उस पर कितना प्रभाव डालेगा, यह आपको सोचना है। मैं इसमें कोई और बात नहीं करूँगा। कहते हैं अन्य विनाशकारी गैसों की मात्रा में वृद्धि होती चली जा रही है। सौर ऊर्जा का लगभग 51% भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है। जर्नल सी बात है, अगर आप धरती पे कोई गतिविधियां करोगे या तो धरती सोखेगा या आकाश सोखेगी, और वही आकाश बाद में आप पे पलट देगी। तभी तो आप देखते हो कि आजकल एसिड रेन जो होती है बहुत काफ़ी अधिक होती है, आपके द्वारा फैलाया। आप सब क्या सोच रहे हो कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, गलत है ही नहीं इसमें। आप सोचोगे कार मोटर गाड़ी चला रहा हूँ तो गैस तो निकल रहे हैं, सब ऊपर जा इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों, प्राकृतिक कभी भी अपने पास संग्रहित का कोई चीज़ नहीं रखती, वो दोबारा हम तक लौटा देती है। आप जितनी पोल्यूशन फैलाओगे सब के सब आप तक ही पहुँचेगा। आपने देखा भी होगा कि कूड़े करकट जो जितने भी होते हैं आप समुद्रों में फेंक देती हो, सब के सब दोबारा जब रेन होती है आपके घरों तक ही पहुँच जाती है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जितना फैला लीजिए, जितना कर लीजिए, सब ऊपर इकट्ठा होगा और जब रेन होगा तो सब धरती के नीचे ही आपको ही सहना पड़ेगा। तो कहते हैं हम जितना गलत करते जाएंगे उसका परिणाम हम पे ही गलत पड़ेगा। इसलिए समझदारी बनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और आपको क्या कहता हूँ हमेशा कि जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उनका सेवन बहुत कम करें तो ही फ़ायदा है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है काफ़ी नुकसानदायक होता है और ये आपके जीवन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। कंपनियों की बात मानिएगा तो वो कहते हैं ना, कोई भी अपना दही को खट्टा नहीं कहता है। कोई अपना दही को खट्टा कह दे उसको मैं मान जाऊँ, कोई कह ही नहीं सकता। तो अपना चीज़ों को कोई गलत कैसे कह सकता है। अपना चीज़ों को वो लोग हमेशा बेहतर और बेहतरीन दिखाते हैं, ठीक है। वो हमेशा कहते हैं इको फ्रेंडली है, लिख भी देते हैं, लेकिन वास्तविकता से आप नज़र नहीं मोड़ सकते, और नज़र मोड़ोगे तो सदैव ही धोखा ही खाओगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अर्थ होता है समझदार बनना, सोचने वाला बनना, विचार करने वाला बनना, न कि दूसरे के बातों पे, इशारों पे चलने वाला। परंतु अगर बात हम करें प्रदूषण के कारण प्रवर्धित ऊर्जा का कुछ भाग हरित गृह गैसों जैसे मुख्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रोक लिया जाता है, और इससे पृथ्वी धरातल पर तापमान बढ़ जाता है। और इस बात के प्रमाण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब भी बढ़ रहा है। तो जनरल सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की सोच समझ नहीं बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत से देशों ने हरित गृह गैसों का काम करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। हालांकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो है जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन को रोकने में अभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। तो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि विश्व कुछ भी नहीं कर सकता,
कितना करेगा? अब विश्व की ही बात कीजिए, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूशन फैलती है, लेकिन देखिए अभी युद्ध जो चले जा रहे हैं, परमाणु बम और न जाने कितने तरह गोले दागे जा रहे हैं, क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा नहीं? क्या देश का विनाश नहीं होगा? पूरे विश्व का विनाश नहीं होगा? संभवतः होगा ही होगा, लेकिन ये बहुत तेज बंदे, बहुत समझदार बंदे युद्ध को रोक नहीं सकते हैं, विनाश के लिए अग्रसर होंगे। तो कहाँ से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको जो है कुछ सोल्यूशन किया जा सकता है? और आप सोचते होंगे ये युद्ध तो बहुत दूर हो रही है, हम तो ऊपर पहुँचेगा ही नहीं। कोरोना वायरस भी चाइना में स्टार्ट हुई थी, भारत तक बहुत आसानी से पहुँच गई थी, तो वहाँ के क्या धूल मिट्टी क्या वहीं पर रहेगा? क्या सोच रहे हो? क्या धूल मिट्टी वहीं पे रहेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रहेगा? नहीं, पूरे विश्व को कभी प्रभावित करेगा। जनरल सी बात है, कहते हैं पर्यावरण किसी एक का नहीं है, पूरे विश्व का है। कोई भी गलत चीज़ कहीं भी होगी, इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में और हर एक कोने में पड़ेगा। तो इसलिए मत सोचिए कि वो वहाँ पर हो रहा है, सोचिए यहीं पर हो रहा है और आप इससे प्रभावित हो रहे हो। हमें पहले ही जानते हैं कि 70% भारतीय कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, और भारत में तो जनरल सी बात, भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, और 70 से अधिक लोग जो है कृषि में ही संलग्न है। तापमान में कोई भी परिवर्तन कृषि पर हानिकारक प्रभाव डालेगा, और इसका भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गंभीर प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश है। और कहते हैं अगर तापमान में परिवर्तन हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगा। और इस पाठ को पढ़ने के बाद हम ये बात जान गए हैं कि जलवायु का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन, हमारे त्यौहार, हमारी अर्थव्यवस्था सबसे मौसम चक्र से जुड़े हुए हैं। अगर मौसम अनुकूल है तो मानव जीवन अच्छा और आरामदायक हो जाएगा, क्योंकि मौसम की स्थिति कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और आदि को काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य हानिकारक गैसों को कम करें। अब कम कहाँ कीजिएगा? आपको घर से बाहर जाना है, एसी में जाना है, कार में एसी चालू करना है, दौड़ के आना है, बाहर से ड्राइवर जो है फ्रिज खोलना है, ठंडे ठंडे पानी को गटकना है, तो कहाँ से हो सकेगा? दोस्तों, ये बात को आप गंभीरता से लीजिए, ये आपकी जीवन का सवाल है। आज जो आप डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हो, कहते हो कि बहुत बीमारियां फैल गई, बहुत समय बेकार चल गई। बेकार समय नहीं चली है, बेकार हम लोग बन गए हैं। हम लोग अपनी सुख सुविधाओं में जो वास्तविकता है उसको भूलते चले जा रहे हैं। और त्रिपाण चंद्र कभी नहीं कहता है कि जो वास्तविकता है उसको भूलिए। कहते हैं जो गलत है वो सदैव गलत ही होगा, और जो सही है वो सदैव सही ही होगा। किसी के कमेंट कर देने से, कभी किसी को गलत कर देने से कोई गलत नहीं हो सकता है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। समझने वाली बात बहुत थी, सोचने वाला भी बात बहुत था। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी, समझ में आया, तो सोचिए मत। सोचने का काम कभी भी सही नहीं होता। सोचना तब जो देश कल्याण के लिए बात हो, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा सोचने वाली बात ही नहीं है, समझने वाली बात है जो आपको समझ में आया। और समझ में ये भी ज़रूरी है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो शेयर कीजिएगा तभी त्रिपाण चंद्र आपके लिए सदैव अच्छे से अच्छा कार्य करता रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि देश कल्याण की ही बात इसमें होती है। कोई बच्चा अगर ढंग से पढ़ लेता है, त्रिपाण चंद्र का सभी वीडियो समझता है, तो मैं कहता हूँ वो देश का सबसे उज्जवल भविष्य उसके पास पहुँच जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि उसमें त्रिपाण चंद्र में हर बातों को जो है अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाता है। और ये नहीं कि सिर्फ किताबी बातें, जो ज्ञान है, सच्चाई है, उसी पे ही हम बात करते हैं। तो ये अगर बात आप रखते हो तो एग्जामिनर भी काफ़ी सही मान्यता देगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन रट के जाओगे ना, वो कभी भी आप लिख नहीं पाओगे। ये आपको भी समझ है और ये मुझे भी समझ है, ठीक है दोस्तों। अगर आप त्रिपाण चंद्र की सहायता करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अपने मोबाइल में सेव जरूर कीजिए। तो सेव कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ है और आपके ज्ञान के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए। त्रिपाण चंद्र को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।